Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about capital subscription, the last stage of company's formation. And as we discussed in the classes, you know that there are some steps of capital subscription. So first of all, we are revising these steps. The first one is SEBI approval. SEBI is the regulatory body of capital market or stock market. So if you want to invite public, then you have to follow the certain legal requirements of SEBI. For example, according to SEBI guideline, the company who is inviting public for the investment or share capital have to disclose all the material information, never conceal any information which is material, so that we can protect the investors. Is it clear? Then the second we have discussed in the filing of prospectus. Prospectus is a document containing the material information of a company. So if we want to invite investor, then we have to give them prospectus or issue a prospectus. Is it clear? The next is appointment of bankers, brokers and underwriters. ठीक है. सो हम बात कर रहे हैं कि वी हैव टू फाइल द प्रोस्पेक्टस टू द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. So the company have to disclose all the material information in the prospectus. The information provided in the prospect must not be or should not be misleading. The next is appointment of bankers, brokers and underwriters. We will receive payment or we will receive the investment through the banks. Reason, the investors are scattered, फैले हुए होते हैं बहुत ज़्यादा और नेशन वाइड ट्रेडिंग होती है, तो हमें बैंकर्स अपॉइंट करने होते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया था प्रमोशन में कि वी हैव टू अपॉइंट मर्केंटाइल बैंकर्स. इज इट क्लियर? सो इसके बेसिस पर हमने पढ़ लिया कि हमारा ये काम होगा. नाउ द नेक्स्ट इज bankers, brokers are the person who are selling the share on behalf of the company but never guarantee the subscription of shares, कि कभी कोई फुल गारंटी नहीं मिलेगी कि आपके शेयर सब्सक्राइब होंगे ही. The next is underwriters are those person if the company is not fully satisfied or not sure that they will receive the minimum subscription, then they will appoint the underwriters. Underwriters assures the company for subscription of the share. Is it clear? And they will receive commission in this regard. Then we have discussed about minimum subscription. Minimum subscription means in order to prevent companies from commencing business with inadequate resources, कि कंपनी inadequate resources से चले, इसे रोकने के लिए it has been provided that the company must receive application from certain minimum number of shares, कि कंपनी के पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आए ही आए. ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. और ये सब पता होना चाहिए कि शेयर्स के अलॉटमेंट से पहले की बात है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन और इसी को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. एज पर द SEBI गाइडलाइंस, द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, कि जितनी हम टोटल कैपिटल इशू करने चाहते हैं उसका एक 90% पार्ट के एप्लीकेशंस हमारे पास आ ही जानी चाहिए. दस इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर्स आर ऑन अमाउंट लेस देन 90%, और अगर मिनिमम 90% से कम की एप्लीकेशन हमें मिलती है, ठीक है, द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड, तो हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते. एंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स. तो जितना पैसा हमें मिला है, जितना फंड्स हमें मिले हैं, वो हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न करने होंगे. फॉर एग्जांपल, वी आर इनवाइटिंग 1 लाख रुपीज़ कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. दैट मीन्स कि मिनिमम 90,000 की कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन आ जानी चाहिए. ज़्यादा आते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना तो आना ही आना चाहिए. और इन केस अगर इससे कम है
दैट मीन्स कि शेयर होल्डर्स को ये फंड्स को क्या करना हो, और कंपनी ये फंड्स क्या करेगी, रिटर्न बैक कर देगी विद इन 10 days ऑफ क्लोजिंग ऑफ अलॉटमेंट। ये मेंशन नहीं है हमारी बुक में, और अगर हम 10 days में नहीं करेंगे देन वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एज वी डिस्कस कि हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे ये स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में करेंगे, तो ये हमारा काम होगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। ठीक है, एक टर्मिनल है ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अमेजोन इंडिया एग्जांपल लेते हैं। क्या अमेजोन के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं? नो। सैमसंग, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, जो भी चीज़ें हैं वो दूसरी ब्रांड के हैं और उन्हें अमेजोन के थ्रू सेल किया जा रहा है। अमेजोन जो है वो एक मिडिल मैन है, डिजिटल मिडिल मैन। वैसे ही कि कंपनी जो शेयर्स अपने लिस्ट कर देगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। नाउ एन एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट शेयर्स और डिबेंचर। तो हमें अब इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो उनमें से रिकॉग्नाइज जो अभी फ़िलहाल काम कर रहा है उस स्टॉक एक्सचेंज पर हमें अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली में जो है वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इन स्टॉक एक्सचेंज पर हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसी पर रजिस्ट्रेशन के बाद हम हमारे और यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही हम हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ सच परमिशन इज़ नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 weeks from the date of closure of subscription list, the allotment shall become void and all money received from the applicants have to be returned to within the 8 days। कि इन्होंने कहा कि परमिशन अगर नहीं मिलती है, आपने सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को दे दिया और परमिशन नहीं मिली, तो जो आपने अलॉट कर दिए थे शेयर उनको वापस रिटर्न करना होगा। ठीक है, जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल करना होगा, और जितना भी फंड्स आपने जनरेट किया है वो विद इन 8 days आपको रिटर्न करना होगा। और अगर नहीं करोगे देन पेनल्टीज, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किए जाएंगे। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। टिल द टाइम ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड रिमेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट नॉट बी यूज बाय द कंपनी। कि जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होंगे कंपनी कैपिटल का जो या पैसा जो इन्वेस्टमेंट मिला है उसे यूटिलाइज नहीं कर सकेगी, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज लेस देन द नंबर ऑफ अप्लाइड, और वेयर नो शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी if any is to be returned to the applicant station or adjusted towards the allotment of money due from them। अब दो सिचुएशन है, एक तो ये कि 1 लाख की चाहिए थी, 90,000 की आई तो सीधी सी बात है, या 92 की आई, 95 की आई, तो मतलब हम जितनों लोगों ने जितने शेयर्स मांगे उतने हम दे सकते हैं। ठीक है, बट सपोज 1 लाख की है लेकिन एडमिशन या इन्वेस्टर्स के एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई, सपोज 120 के लिए आ गई, तो क्या अब सारा पैसा रख सकते हैं? नो, हम केवल कितना पैसा रख सकते हैं? 1 लाख का। दैट मीन्स कि जो अमाउंट है इसी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। अगर हम उन्हें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देते हैं, मतलब रेशियो बना कर देते हैं, जैसे जिसने किसी ने 5 मांगे तो उसे 4 दिए या 3 दिए, तो जो एडजस्ट अगर एक्सेस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, तो उसे नेक्स्ट पर एडजस्ट अगर हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज ये जो एक्सेस अमाउंट है ये हमें रिटर्न बैक करना होगा। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर इशूड ऑन द सक्सेसफुल अलॉटीज। इसके बाद अब अलॉटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे जिस जिसको शेयर्स अलॉट हुए, साइंड बाय द डायरेक्टर सेक्रेटरी फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 days ऑफ अलॉटमेंट। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस तो इसकी एक रिटर्न हमें सबमिट करनी होगी आरओसी को। ठीक है, आरओसी को सबमिट करेंगे जिसका नाम होगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इसे कंपनी का एक डायरेक्टर और कंपनी का सेक्रेटरी सिग्नेचर करके सबमिट करेगा, और ये विद इन 30 days हो जाना चाहिए हमारे अलॉटमेंट के बाद। अ पब्लिक कंपनी में नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, इंस्टेड इट कैन रेज फंड थ्रू फ्रेंड्स, रिलेटिव और सम प्राइवेट अरेंजमेंट एज डन बाय प्राइवेट कंपनी। इन सच केस देयर इज नो नीड टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस। कि अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करना चाहती, पैसा केवल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और
इनसे ही लेना चाहती है, ठीक है, या प्राइवेट सोर्सेज से लेना चाहती है, तो ऐसे केस में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक स्टेटमेंट देना है, छोटा सा डिक्लेरेशन टाइप आपको देना होगा और इसे ROC के पास देना होगा अलॉटमेंट करने के 3 दिनों के अंदर अंदर। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअल में क्या है कि अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस नहीं किए, 2 डॉक्ट्राइन डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो अब रिमेनिंग क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो 2 लॉ हैं हमारे पास, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स and the next is doctrine of indoor management. तो ध्यान से समझेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स कि हमने पढ़ा था कि वी कांट गो बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ MOA, हम MOA के बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। दैट मीन्स MOA इज़ अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इफ़ वी गो बियॉन्ड द MOA देन द ऑल एग्रीमेंट्स विल बी इनवैलिड और उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। सो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स। इज इट क्लियर? ठीक है कि अब सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझना, MOA एंड AOA आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे। दैट मीन्स कि पब्लिक इन्हें रीड आउट कर सकती है, ठीक है। वो तो हुआ वॉइड एब इशू। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें पता है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे पब्लिक है। दैट मीन्स कि जो भी आउटसाइडर है जब भी वो कंपनी से ट्रांजेक्शन करने आएगा उसे वो सब रीड कर कर आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक है उसको आपको पढ़कर आना चाहिए। तो अगर आप पढ़कर नहीं आते हैं, उसकी वजह से कोई लॉस होता है, तो कंपनी विल नॉट लाइबल, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब सीधी सी बात है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कौन पर्सन रियल में ऑथोराइज्ड है नहीं है, इसकी नॉलेज हमें नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या करें हम ऐसी सिचुएशन में? तो हमें ऐसी सिचुएशन में ये अज्यूम करना होता है कि जो आउटसाइडर है उसे नॉलेज नहीं है, और अगर ऐसे केस में कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए कंपनी लाइबल होगी, आउटसाइडर लाइबल नहीं होगा। इसे हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा वो हमें नहीं पता। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये जो 2 टॉपिक थे हमारे रह गए थे, जो कि आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू WhatsApp. थैंक यू स्टूडेंट्स।